Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter Security in the Contemporary World, and under this chapter, we are doing the non traditional notion of security. And we have seen that non traditional notion of security is also known as human security or global security. And this is when we say it as a human security, it means that the non-traditional notion of security is concerned with the protection of the lives of the individual who are living within the boundary of the country. And in this type of notion of security, internal threats are much more important. And we have seen that in human security also there are two types of views. First is narrow view of this narrow concept of this human security, which focus only on violent threats to the life of individual, as there may be threat of this any kind of internal violence, like a civil war is there, genocide is there. These are the examples of narrow concept of human security. On the other hand, there are many who consider that any kind of threat which may not include violent threat only, that also come under human security, like threat of disease, threat of poverty. Okay, these all come under the notion of security, non-traditional notion of security. So ह्यूमन सिक्योरिटी में इस तरह से दो व्यूज़ थे, ये हमने देखा. देन वी हैव ऑल्सो सीन कि इसको ग्लोबल सिक्योरिटी भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ कंसर्न विद द whole world. There are many issues which can never be resolved only by the effort of a single country. There is need to cooperate. There must be cooperation between the countries. So global security के लिए जो बात होती है, उसमें जो थ्रेट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? दैट इज़ फ्रॉम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एपिडेमिक, लाइक अभी जो पैंडमिक है. दीज ऑल आर under the purview of global security. And now we are discussing new threats of new source of threats. So what are the new source of threat? The first is terrorism. As we have seen in this terrorism, what happens that civilians are deliberately and indiscriminately targeted by the terrorist organization, because they put some pressure, they want to put pressure on the government, they want to fulfill any of their demands, and for that purpose they target the civilians. This terrorism can come in different forms, like hijacking of this aeroplane, or bombing, planting of the bombs at railway stations, in the train itself, or at any place like malls, restaurants. These are the various ways through which terrorism manifests. And then we have also we were discussing the second threat, that is human rights. And in this we have seen that there are three types of rights: political rights, social and economic rights, and rights of colonized people or ethnic and indigenous people. But here we have seen that among the experts of human rights, there is lack of consensus on which sets of rights should be considered universal. किसको यूनिवर्सल माना जाए, कौन से राइट्स को हम यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स मानेंगे. एंड if there is a violation of human rights in any country, then in that situation what should be done by the international community.
And we have also seen that there are so many different situations are there in which human rights were violated, like when Iraq invaded Kuwait. Then in Rwanda there was genocide. A particular community was there was mass killing of a particular community in Rwanda. And then in इंडोनेशिया में जो इस तैमूर के साथ जो कुछ भी इंडोनेशिया का कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें जो इंडोनेशिया की मिलिट्री थी उसने इस तैमूर के लोगों को की जान ली, मारा उन्हें. तो दीज आर ऑल various examples of human rights violation. Here also we see that there is a debate, and the debate is on this issue that the UN should intervene on such matters of violation of human rights or not. There are some countries which are of the opinion that uh, the international community's responsibility is to stop the violation of the human rights. If in any country such condition is prevailing in which human rights are being violated, then the international community must interfere, and it is according to the charter. It's not something which the international community will do against the charter. No, it is according to the charter, because they are intervening to protect a particular community. They are intervening to protect the human rights of a particular community. So it is according to the ideas of the charter. But at the same time, what we find that there are many countries who are of the opinion that there should not be any kind of interference by the international community in such matters, in the matters of violation of human rights, because this is first of all internal matter of the country. And second, what is the main issue? The main issue is that whenever such interference will be done, it will be done according to the interest of the great powers. It will never be done on any reasonable basis. Might is right. If a country is having good relationship with the great powers, then there will not be any kind of intervention in the matters of that country if in reality human rights are being violated in that country. But if the country is not having good relationship with the great powers, then there can be interference on any small issue. So this is misuse. This will lead to misuse of this power of intervention, and that is why there is debate. So it is a very important threat of modern time, human rights का violation होना. And next we see जो next हमारी source of threat है, that is global poverty. The third one is global poverty. Global poverty is another threat to security, and it is such a threat which is a part of the broader concept of non-traditional notion of security, because poverty has nothing to do directly, it has nothing to do with the violence. And as we know, what is poverty? Poverty is when we are not able to fulfill the basic needs of our life, then we will be called poor. So here what we find that if we are talking about global poverty, so if we see the data
of the whole world, but we find that half of the world's population growth occurs only in 6 countries. पूरी जो अगर दुनिया की जो पॉपुलेशन है एट प्रेजेंट, हमारी जो पॉपुलेशन है, फर्स्ट यू शुड नो दैट व्हाट इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन एट प्रेजेंट हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है, पहले आपको ये समझना होगा, ध्यान रखना होगा, इट्स 760 करोड़। ओके, 760 करोड़ वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट बाय 2050 it will reach 1000 crore। अब ये जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, ये इट इज़ नॉट इवन इन द होल वर्ल्ड, है ना। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज हाईली अनइवन। व्हाट वी फाइंड दैट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रो इन जस्ट 6 कंट्रीज। 6 कंट्रीज आर देयर। सिर्फ इन्हीं 6 कंट्री में आधी जो जनसंख्या है वो इन्हीं 6 कंट्री में ग्रो करती है। और ये कौन से 6 कंट्रीज हैं? दीज आर इंडिया अपनी कंट्री, चाइना जो कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जिसकी, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया and Nigeria. Okay, so these are the 6 countries where half of the world's population is growing। पूरी population का जो आधा population है वो यहीं इन्हीं countries को belong करता है। और you have to understand it in such a way that there is relation between poverty and population। poverty और population के बीच में relation है। and what is that relation? we are talking about poverty, the point is poverty, but we are talking about population, how population and poverty are related to each other। population ज़्यादा होगी तो पॉवर्टी होगी। यू जस्ट थिंक इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ फैमिली। इफ अ फैमिली हैज़ 10 members and one person is the earning person, one person is earning money and 9 people are dependent on him, total 10 members are there। okay, suppose in a family 10 members are there and only one is earning। on the other hand, there is another family where 4 members are there, okay, and one is earning। one member, in both the families a single member is earning the money, but the number of family members is different। in the first family we are seeing that 10 members are there, in the another 4 members are there। so what will be the condition? एक आदमी कमा रहा है, 10 आदमी उस पर डिपेंडेंट है। एक आदमी कमा रहा है, 9 आदमी उस पर डिपेंडेंट है। एक आदमी कमा रहा है, 3 आदमी उस पर डिपेंडेंट है। तो ऑब्वियसली जहाँ पर कम लोग उस पर डिपेंडेंट होंगे उनकी कंडीशन अच्छी होगी। अगर दोनों की इनकम सेम है तो ऑलमोस्ट, अगर सेम है तो ये होगा, है ना। जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स हैं वहाँ पर कमी हो जाएगी कंपैरेटिवली। अगर हम 4 मेंबर्स वाली फैमिलीज को 10 मेंबर्स वाली फैमिली से कंपेयर करें तो यहाँ कंडीशन ख़राब होगी, इकोनॉमिक कंडीशन, और यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी। तो जहाँ लोग कम हैं वहाँ कंडीशन अच्छी है। यानी कि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है, परिवार का अगर मेंबर ज़्यादा है तो इट विल लीड टू पॉवर्टी, बिकॉज अर्निंग मेंबर कम है ना। और अगर परिवार का पॉपुलेशन कम है तो आपका इट विल नॉट लीड टू पॉवर्टी। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन, ठीक है।
और ये एक कंट्री के अंदर भी इस तरह की चीज़ होती है कि जब भी जो पॉपुलेशन कंट्रोल के जो मेजर्स होते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो एफर्ट्स होते हैं, वो ज़्यादातर जो रिच क्लास है, जो पढ़ा लिखा क्लास है, उनके यहाँ फैमिली छोटी होती है। जो इलिटरेट पुअर क्लास के लोग हैं, उनकी जो फैमिली होती है वो बड़ी होती है, क्योंकि जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनको ये लगता है कि जितने फैमिली मेम्बर्स होंगे उतने वो पैसा कमाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे जो आएंगे जिनका बर्थ होगा, दे विल हेल्प इन अर्निंग मनी फॉर द फैमिली एंड दे डोंट नीड एनीथिंग टू स्पेंड ऑन देयर अपब्रिंगिंग। तो पैसा तो आएगा लेकिन क्वालिटी नहीं आएगी लाइफ में। पैसा भी बहुत कम आएगा, बच्चे मेहनत करके मजदूरी करके कितना कमा लेंगे। तो ये सोच होती है पुअर एंड इलिटरेट पीपल की। और जो पढ़ा लिखा, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो कंपैरेटिवली सही इकोनॉमिक कंडीशन में, वो ये सोचता है कि हम अपने परिवार को छोटा रखें ताकि हम अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ हों वो उनको अवेलेबल करा सके, ताकि वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के रूप में डेवलप करें और आगे चल के बढ़िया काम करें। तो दिस इज़ द थिंकिंग ऑफ illiterate and poor people. This is the difference between the thinking of an illiterate and poor people and the intelligent and the rich group. So what happens in a country कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास होती है वो तो अपनी फैमिली को छोटा रखते हैं, बट जो इलिटरेट क्लास है, जो पुअर क्लास है, वो अपनी फैमिली को बड़ा करते जाते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर ओवरऑल कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में आप देखिएगा तो व्हाट विल बी द कंसिक्वेंस विल बी दैट द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द होल कंट्री विल डिग्रेड। क्यों? क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल है उन्होंने तो अपनी फैमिली को छोटा रखा, लेकिन जो इलिटरेट है वो अपनी फैमिली को बड़ा करते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ओवरऑल अगर हम पूरी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें तो जो क्वालिटी है, क्वालिटी पॉपुलेशन कम होती जाएगी और जो लेसर क्वालिटी वाले पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो दिस सेम थिंग अप्लाई विद द होल वर्ल्ड ऑल्सो। पूरी दुनिया के साथ भी यही चीज़ होता है। अगर हम पूरे वर्ल्ड को कंसिडर करते हैं तो वर्ल्ड में कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। वी ऑल आर नोइंग, है ना। हमने फर्स्ट चैप्टर में ही इसको मार्क भी किया था मैप में। तो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। डेवलप्ड मतलब दे आर रिच, डेवलपिंग मतलब देयर कंडीशन इज़ नॉट सो गुड, दे आर स्टिल डेवलपिंग। तो यहाँ पर भी वही डिस्पैरिटी हमको देखने को मिलता है। जो एक कंट्री के अंदर रिच और पुअर के बीच का जो डिफरेंस देखने को मिलता है, वही सेम डिफरेंस हमें पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में जो रिचर कंट्रीज़ हैं और जो पुअरर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में देखने को मिलता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम देख रहे हैं कि जो दुनिया की आधी जो आबादी है उसका जो वी कैन से कि वर्ल्ड का आधी जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर उसका ग्रोथ हो रहा है, इन 5 कंट्रीज़ में हो रहा है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया एंड नाइजीरिया। तो ये है प्रॉब्लम। ठीक है, पॉवर्टी जो हम जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विथ द पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पॉपुलेशन को बहुत तेज़ी से कंट्रोल कर लिया गया है। बर्थ रेट में बहुत ज़्यादा रिडक्शन आ गया है। यहाँ तक कि ये कंडीशन हो गई, अगर हम जापान जैसी कंट्री को देखें तो वहाँ पर वर्क फोर्स की कमी हो गई, क्योंकि बर्थ रेट बहुत कम हो गया है और डेथ रेट भी बहुत कम हो गया है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लॉन्गेविटी बढ़ गई है लोगों के लाइफ की। और इस कारण से वहाँ की पॉपुलेशन में बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द बर्थ रेट, वर्किंग जो एज होते हैं उस एज ग्रुप में बहुत कम लोग हैं, जिससे कि कंट्री की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती। और इसीलिए जापान में इतने रोबोट्स बनते हैं, दैट इज़ द रीज़न, है ना।
क्योंकि वहाँ इंसानों की कमी है। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन सब में ये चीज़ आ रही है, ये डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है कि उन्होंने अपने पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है, बर्थ रेट बहुत रिड्यूस हो चुका है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, वहाँ पर बर्थ रेट बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि अभी चाइना का भी जो अभी रिसेंट स्टडी आया है उसमें हम ये देख रहे हैं कि चाइना में भी बर्थ रेट काफ़ी नीचे चला गया बिकॉज ऑफ सिंगल चाइल्ड पॉलिसी वहाँ पर 79 से ही अडॉप्ट किया गया था। तो इन सब रीज़न से बर्थ रेट काफ़ी नीचे चला गया है, लेकिन बेस बहुत बड़ा है इसलिए ग्रोथ भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पॉपुलेशन कम रेट से बढ़ता है, बट हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और इस कारण से जो डिस्पैरिटी है वो भी बढ़ता जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच की जो गैप है, जो डिस्पैरिटी है वो बढ़ता है। और अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर की कंडीशन को देखें तो व्हाट वी विल फाइंड कि दैट इन डेवलपिंग कंट्रीज आल्सो देयर इज गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, है ना। तो ये गैप हर समय बना रहता है, एवरी टाइम, चाहे किसी भी लेवल पे हम देखें, दिस गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज existing here. One more thing you must know that the world is divided into northern and southern part. north जो होता है वर्ल्ड का वो उसमें मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और जो साउथ है वर्ल्ड का, सदर्न कंट्रीज जो हैं दे आर डेवलपिंग कंट्रीज। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ऑस्ट्रेलिया इज एन एक्सेप्शन, है ना। तो बट ब्रॉडली इस तरह से डिवाइड किया गया। तो जो नॉर्थ की कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड हैं, रिच हैं, उनकी पॉपुलेशन पे पूरा कंट्रोल है, और जो साउथ की कंट्रीज़ हैं, सदर्न कंट्रीज़ हैं, दे आर डेवलपिंग, दे आर पुअर एंड देयर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ वेरी हाई रेट। सो व्हाट वी फाइंड कि अगर हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो वर्ल्ड के आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो कहाँ हुए हैं। वो जो सबसे पुअरेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा है, सबसे पुअरेस्ट कॉन्टिनेंट में भी जो सबसे पुअरेस्ट रीजन है दैट इज सब सहारन अफ्रीका। तो सबसे ज़्यादा जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं वो सब सहारन अफ्रीका में ही हुए। क्यों? बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी जो है वो वॉर का भी रीज़न बनता है, और इसी से ये समझ में आता है कि जो सब सहारन अफ्रीका है जो कि पुअरेस्ट रीजन है वर्ल्ड का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट वहीं पर हुआ है। ठीक है, और अगर हम देखें तो 21st सेंचुरी में जितने लोग इस रीज़न में वॉर के कारण मरे हैं वो कहीं ज़्यादा हैं पूरे वर्ल्ड के तुलना में। पूरे वर्ल्ड में जितने लोग द पीपल हु वर किल्ड बिकॉज ऑफ वॉर इन द होल वर्ल्ड, उससे ज़्यादा लोग मरे हैं सब सहारन रीजन में बिकॉज ऑफ वॉर। ठीक है, तो पॉवर्टी ऑल्सो बिकम्स रीजन फॉर वॉर, and in this way it becomes a threat. Okay, and now we see the next threat, जो इसके बाद हमारा threat है, और वो है that is migration। ठीक है, और ये माइग्रेशन और पॉवर्टी दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। माइग्रेशन का मतलब जब हम समझेंगे तो उसी के साथ हमको ये भी समझ में आएगा कि माइग्रेशन एंड पॉवर्टी दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। बिकॉज ऑफ पॉवर्टी पीपल माइग्रेट। माइग्रेट मीन्स अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाना। They migrate from
one place to another because they seek better life. They are not getting better life at the place where they are living, जहाँ की वो सिटीजन है, तो वो वहाँ से माइग्रेट करते हैं दूसरी कंट्री में, है ना, ताकि उनको बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, उनकी लाइफ जो है वो बेटर हो सके. और ये जो माइग्रेशन होता है, दिस माइग्रेशन इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. साउथ जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को है, जिसमें सदर्न कंट्रीज़ जो हैं दे आर डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड नॉर्दर्न कंट्रीज़ दे आर डेवलप्ड कंट्रीज़. तो from developing people are migrating from developing countries to developed countries, from poor countries to rich countries in search of better economic opportunities, है ना. and migration is never welcomed. migration के कारण बहुत सारे problems आते हैं. it causes so many problems regarding international law and norms, है ना. क्योंकि जो माइग्रेंट्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल. एक तो माइग्रेंट हुए वो जिन्होंने वॉलंटियरली अपने जगह को छोड़ दिया है, ठीक है. तो माइग्रेंट कौन हुए? Those who have voluntarily left the place, जहाँ पर वो रह रहे थे, their home place कह सकते हैं हम, they voluntarily left their home country. इनको हम माइग्रेशन कहते हैं, माइग्रेंट है, दे आर माइग्रेंट. दूसरी तरह के जो लोग होते हैं जो एक अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री की तरफ जाते हैं, they are also known as refugee. But there is difference between refugees and migrants, है ना. refugee migrants तो अपने से छोड़ के गए. refugee जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना देश छोड़ के भाग गए. क्यों? because of war, because of natural disaster, or there may be some kind of a political persecution. so बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स जब वो भाग जाते हैं अपना देश छोड़ के, यहाँ पर हम समझना होगा वॉलंटरली वो छोड़ रहे हैं, बट यहाँ पे फ्ली कर रहे हैं, भाग रहे हैं. उनको भाग छोड़ने की इच्छा नहीं थी, बट जो सिचुएशंस हुए वो सिचुएशन ऐसे हुए जिसके कारण उनको छोड़ के भागना पड़ रहा है अपना देश. दे आर फ्लीइंग फ्रॉम देयर ओन कंट्री बिकॉज ऑफ वॉर. फ्ली from their own country because of war, or there may be natural disaster or political persecution. ठीक है. तो इन सब रीज़न से वो फ्ली कर रहे हैं. ओके. अब हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ होते हैं वो जो रेफ्यूजीज़ आते हैं उनको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना. स्टेट्स जनरली एक्सेप्ट रेफ्यूजी, क्योंकि रेफ्यूजी अपनी जान बचाने के लिए उनको भागना पड़ा. वो विलफुली नहीं भागे हैं, छोड़ के नहीं आए, बल्कि उनको छोड़ना पड़ा. तो दे आर एक्सेप्टेड, बट द स्टेट्स डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट माइग्रेंट्स, है ना. So on humanitarian ground, the states accept the refugees, but they do not want
टू एक्सेप्ट द माइग्रेंट। उसमें वो बहुत ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। लाइक आपको वीज़ा चाहिए होता है, अगर आप किसी कंट्री में वॉलंटियरली जाना चाह रहे हैं तो एक ऑब्स्ट्रक्शन क्या आता है, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन है वीज़ा का। वीज़ा मिलना आसान नहीं होता है। तो दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएटेड बाय द कंट्रीज टू स्टॉप द माइग्रेंट फ्रॉम कमिंग टू देयर कंट्री, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। और इसी के साथ साथ एक और टर्म जो है वो जुड़ा हुआ है, दैट इज़ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। इंटरनली मतलब एक ही कंट्री के अंदर वो अपने ओरिजिन प्लेस को छोड़ के बिकॉज ऑफ सम रीज़न उनको छोड़ना पड़ा और अब वो दूसरी जगह, उसी कंट्री में दूसरी जगह जाके बस गए। लाइक जो कश्मीरी पंडित्स थे, जब 1990s में बहुत ज़्यादा वहाँ पर टेररिज्म आया कश्मीर में, तो जो कश्मीरी पंडित थे उनको अपना ओरिजिनल प्लेस छोड़ करके इंडिया के जो डिफरेंट अलग अलग जगहों में उनको जाकर बस गए। ठीक है। So we will continue with this discussion in the next class.